My name is Tanmay Joshi. I was born and brought up in the city of Nathdwara in the district of Rajsamand, Rajasthan. I have done my schooling from Nathdwara itself, and I have done my graduation from National Law University, Nagpur. And right after graduating from the university, uh, I started preparing for judicial services examinations. ओके तन्मय, आपका ग्रेजुएशन कौन से ईयर का है? सर ये 2022 का है सर. 2022. उसके Yes, sir. बाद से वर यू अपीयरिंग फॉर वेरियस जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन? यस सर. आपने पहले कौन से जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस दिए हैं? जी सर. सबसे पहले सर मैंने गुजरात का जो जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन है वो दिया था. ओके. उसके बाद मैंने सर एमपी वाला दिया, फिर हरियाणा वाला दिया सर मैंने, फिर झारखंड वाला भी दिया सर मैंने, और उसके बाद सर मैं राजस्थान के लिए अपीयर हुआ. Okay, so you have appeared for multiple various states यस judicial सर. services. यस सर. Okay, and are there any results pending or any examinations pending from any states for you? Yes sir. In Jharkhand judicial services examination I cleared the pre-examination, Okay, and mains is awaiting. examination, yes, the date of mains examination has not been released by the Public Service Commission Board of the Jharkhand state. Okay, so let's say if you clear the Rajasthan judicial services, will you be appearing for the mains examination of Jharkhand? No sir, as I am from the state of Rajasthan, and I was eagerly waiting for Rajasthan judicial services examination, and I was confident that if I appear for the Rajasthan state judicial services examination, then I will get through. So Okay, so right now Tanmay, I have plans. Yes sir. yes, please continue. So sir, right now I have no plans in appearing Jharkhand judicial services examination. Okay. I'm hopeful that yes sir. Okay. We are also hopeful that we will find you in Rajasthan Judicial Services. That's very nice. And Tanmay, can you please let me know and the other board members what were the points of improvement that you worked on and you were able to crack the mains examination of Rajasthan, because you have appeared for various judicial services, Gujarat and MP as well. But what went well this time? What did you improve? Sir, in Gujarat particular examination, there was a dedicated paper for Gujarati language. So Okay. I was not able to crack that paper. Okay. And what about MP? Then I realized that the language part is the most important part in cracking any of the mains examination where there is a language paper. So then I started working on my Hindi and English languages, and this was the most important part I learned from my mistakes. Okay. Tanmay, I might be wrong on this, but do you have an issue of stammering? Stammering का issue है क्या आपको थोड़ा सा? सर मैं जब छोटा था तब थोड़ा सा था, पर फिर मैंने सर बाद में थोड़ी प्रैक्टिस से मैंने सर उसको ठीक किया है सर. Very nice. That's very good. What are your हिंदी में सर इतनी दिक्कत नहीं आती है, पर थोड़ा इंग्लिश में. आपका मीडियम क्या है, हिंदी है कि इंग्लिश है? सर इंग्लिश ही है मेरा मीडियम, पर थोड़ा सा स्कूलिंग में सर थोड़ा ये ध्यान देने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी सर. अच्छा, ठीक है. तन्मय, आपकी हॉबीज क्या हैं? सर हॉबीज मेरी सर कुकिंग है, रीडिंग है, और नई जो सिटीज है उनके सर जो ओल्ड एरियाज है उनको एक्सप्लोर करना मुझे सर अच्छा लगता है. अच्छा, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर राजस्थान में आता है तो राजस्थान में ऐसी 4 जगहें बताएं जिनका माइथोलॉजिकल रेलेवेंस है. जी सर एक तो मेरी खुद की सिटी है सर नाथद्वारा, जिसका सर बहुत ये सर माइथोलॉजिकल रिलेवेंस है, क्योंकि यहाँ पे एक सर ये श्रीनाथ जी का बड़ा मंदिर है जिसमें सर कृष्ण भगवान की एक मूर्ति को पूजा जाता है, तो इसका सर एक बहुत बड़ा रिलेवेंस है. फिर सर मैं सालासर बालाजी धाम है, वहाँ पे भी उनको भेजना चाहूंगा कि माइथोलॉजिकल उसका भी सर एक अच्छा खासा रिलेवेंस है. और सर अजमेर शरीफ की जो दरगाह है, तो वहाँ के जो जियारीन है जो ख्वाजा इमामुद्दीन चिश्ती साहब में जो मानते हैं, तो मैं उन्हें वहाँ भी भेज सकता हूँ. और सर ऐसे ही सर ये खाटू श्याम जी का मंदिर है सीकर में. सर कई मंदिर हैं और कई जगह ऐसी सर हैं जहाँ पर रिलेवेंस है माइथोलॉजिकल. अच्छा, तन्मय मुझे ये बताइए आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कौन सा सब्जेक्ट पसंद करते हैं पढ़ना?
सर सीपीसी थोड़ा मुझे सर मेरा इंक्लिनेशन सर थोड़ा सीपीसी की तरफ ज्यादा है। सीपीसी की तरफ है, ठीक है। ओवर टू यू मित्तल सर, सीपीसी फेवरेट सब्जेक्ट है तन्मय का? थैंक यू सर। जी। आपने अभी अजमेर शरीफ की दरगाह का जिक्र किया, जी सर। तो वहाँ के कौन जानते हैं आपको? सर सवाल सर मैं थोड़ा सर समझ नहीं पाया, कौन सर? जियारीन कहा था आपने, क्या कहा था? जियारीन जानते हैं? या सर जियारिन, ये सर मुझे जानते नहीं है। अगर सर कोई ये मुझसे पूछेगा कि अगर की कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे देखिए, हम। हाँ, प्रॉपर वर्ड जायरीन है, अच्छा। जियारीन वर्ड नहीं है, जी सर। जायरीन। जी सर। उर्दू में तो एक नुक्ते से ही खुदा से जुदा हो जाता है। जी। खुदा जी सर। में ऊपर लगता है और जुदा में नीचे लगता है नुक्ता, तो जी। जायरीन है, जी। जायरीन। ओके। जी। जी सर। ये बताइए, जजमेंट शब्द आपने सुना होगा, जी सर। इसकी स्पेलिंग क्या है? सर JUDGMENT। और कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं JUDGEMENT। जी सर, वो सर दो, गलत। दो, दोनों में क्या फर्क है? सर JUDGMENT सर ये प्रॉपर स्पेलिंग है सर जजमेंट की। हाँ, और JUDGEMENT है सर, तो वो थोड़ा उन्हें सर माफ कीजिएगा, थोड़ी सीखने की थोड़ी उनको जरूरत। अच्छा। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे आप कंप्यूटर पे आप जानते होंगे, टाइप वाइप करते होंगे, जी सर। टाइप करते हैं कंप्यूटर पे, जी सर। तो आपने मान लीजिए वर्ड लेबर टाइप किया, जी सर। LABOUR, जी सर। तो उसमें अंडरलाइन आ जाती है लाल, जी इसका सर। मतलब वो स्पेलिंग गलत है। जी सर। और वो स्पेलिंग जो सजेस्ट करता है वो LABOR जी सर। सजेस्ट करता है। जी तो क्या है, क्या चक्कर ये? सर, वो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो सर सॉफ्टवेयर है, वो ये सर बेसिकली सर फॉरेन कंट्रीज में डिजाइन हुआ है। तो सर अगर वो यूके की इंग्लिश में होता है तो सर वो LABOR सर उसको सही मानता है। और सर यूएसए की अगर वो इंग्लिश में होता है हाँ, तो वो अब आप बिल्कुल पॉइंट पर आइए आप। देयर इज तो। डिफरेंस ऑफ स्पेलिंग्स इन दी अमेरिकन इंग्लिश जी एंड दी सर। ब्रिटिश इंग्लिश। जी सर। ब्रिटिश इंग्लिश में LABOUR है, JUDGMENT है, अमेरिकन इंग्लिश में JUDGEMENT है। जी सर। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब आप ये बताइए, IPC आपने पढ़ी होगी। जी सर। अ, मान लीजिए कोई बच्चा 7 साल का है और उसने कोई जी। ऑफेंस किया है, जी। तो उसको क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए? जी सर। सर यहाँ पर डोली इन केपेस का प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा। हम्म। और सेक्शन 80 82 के अंडर सर उसको सर एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। और भी कुछ एक्सेप्शंस हैं IPC में? जी सर। क्या क्या? ये सर, ये सर चैप्टर 4 ऑफ द आईपीसी में हाँ, सारे एक्सेप्शन हुए हैं, जो कि जनरल हाँ, एक्सेप्शन से जाने जाते हैं। हाँ, सेक्शन 7 के सर 106 तक ये जाते हैं हाँ। सर। एक आध जैसे कि बता दीजिए। जी सर, सेक्शन 80 में सर जैसे कि एक्सीडेंट का सर एक एक्सेप्शन है। फिर हम्म, सेक्शन 84 सर इंसेनिटी का एक एक्सेप्शन है। हम्म, अ, ये उसके पश्चात सर ये सेक्शन 95 में सर प्राइवेट डिफेंस का एक एक्सेप्शन हम्म, है। हम्म। ये वेरी जो गुड, वेरी गुड। section ये है। अच्छा, ये बताइए, एक आपने सुना होगा कि साहब उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज दिया, जी फला सर। डाकू था या फला दुर्दांत क्रिमिनल जी। था, उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज दिया, जी जिसको सर। तन्हाई बोलते हैं। जी सर। तो ये है क्या, और कितने दिन रख सकते हैं उसमें? जी सर। सर ये सर आईपीसी के सेक्शन 73 में डिफाइंड है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। वेरी गुड। सर ये लिखा हुआ है कि अगर ये सर किसी ऑफेंडर को अगर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी गई है तो हाँ, कोर्ट के पास एक ऑप्शन है कि वो उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी भेज सकते हैं। कितने मैक्सिमम दिन के? इसकी मैक्सिमम इसकी लिमिट सर 3 महीने है। और हाँ, सर ये सर वेरियस ऑफेंसेस के वेरी सर। गुड, वेरी गुड। आई गॉट दी पॉइंट, आई जी गॉट दी सर। पॉइंट। वेरी गुड, जी। एक्सलेंट। जी। थैंक यू अब सर। आप एक चीज बता दीजिए कि मैं कोई प्लेंट ड्राफ्ट कर रहा हूँ जी सर। और मेरा जो केस है उसको फोर्स मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है,
जी सर। बिल्कुल सिमिलर फैक्ट्स हैं और उससे मुझे फोर्स मिल रहा है। जी सर। तो क्या मैं अपने प्लेंट में सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का रेफरेंस दे सकता हूँ या नहीं दे सकता? सर प्लेंट में सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स ही सर प्लेंटिफ लिख सकता है। जो सर फैक्ट प्रोवेंशिया है वो सर ये प्लेंट्स में सर मेंशन नहीं किए जाते हैं रूल 1 के हिसाब से, ऑर्डर 7 रूल 1 के हिसाब से। ठीक। जी सर। ऑर्डर 7 रूल 11 में किन किन हालात में प्लेंट रिजेक्ट किया जा सकता है? जी सर। सर पहला हालात तो यही है कि अगर वो कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं करता है तो। दूसरा सर ये है कि अगर जो सूट है वो प्रॉपर्ली वैल्यूड नहीं है और उसके पश्चात भी अगर समय दिया गया है कोर्ट के द्वारा, तो उस समय अवधि के अंदर भी अगर वो जो जो सर प्लेंटिफ है वो जो उसकी मिस्टेक हो है उसको रेक्टिफाई नहीं करता है तो सर उसको सर रिजेक्ट कर दिया जाता है। थर्ड ये है कि सर वो सूट अगर प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड नहीं है। फोर्थ ये है कि सर अगर वो सर सूट जो है वो जुरिस्डिक्शन के कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर है। और फिफ्थ ये है कि सर वो जो सूट जो है सर वो बार्ड बाय लॉ है। और सिक्स्थ ये है कि अगर सर उसकी जो जो सर प्लेंट की जो ये जो कॉपी सर डुप्लीकेट में अगर फाइल करनी थी प्लेंटिफ को, तो वो फाइल करने में फेल हो जाता है तो सर ये सर एक ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन है। और अच्छा, सर ये आपने ग्राउंड। ठीक है। आपने जुरिस्डिक्शन का एक पॉइंट उठाया। जी सर। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ जी कि सर। एज ए सिविल जज जूनियर डिवीजन आपका पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन 1 लाख रुपया है, जी सर। ठीक है? जी। और जिस समय मुकदमा दायर किया गया था, प्लेंटिफ ने उसका वैल्यूएशन 90,000 रुपए किया था। जी सर। बाद में वैल्यूएशन के पॉइंट पर इशू बना और उस इशू के हिसाब से सूट का वैल्यूएशन 1 लाख की बजाय 3 लाख रुपए हो गया। जी सर। तो आप क्या करेंगे? उसको 7-11 में रिजेक्ट कर देंगे या और कुछ कोई ऑप्शन है? सर सर इस केस में सर रिजेक्शन का ग्राउंड सर उत्पन्न नहीं हो रहा है क्योंकि सर जिस समय सर केस फाइल हुआ है उसी समय सर ये सर स्क्रूटनी की जाएगी कि जो वैल्यूएशन है वो जुरिस्डिक्शन जो पेक्यूनियरी सर जुरिस्डिक्शन है कोर्ट का वो सर उसके अंदर आता है या सर नहीं आता है। वो ठीक है, वो कर लिया आपने। वो जी सर। आता था इसीलिए आपने सूट को एंटरटेन किया, एडमिट किया, आपने इशू नोटिस किया, दूसरी पार्टी अपीयर हुई, दूसरी पार्टी ने कहा कि साहब ये प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए की नहीं है, ये प्रॉपर्टी तो 5 लाख रुपए की है। जी सर। और उसके बाद उसका वैल्यूएशन जो है 5 लाख रुपए हो गया। तो जी फिर आप सर। क्या करेंगे? आप मुकदमा तय करेंगे या डिसमिस करेंगे या 7-11 में उसको प्लेंट को रिजेक्ट करेंगे? क्या करेंगे आप? सर सिविल जज जूनियर डिवीजन सर मुकदमे को तो तय कर ही सकता है क्योंकि जो लिमिट है वो सिर्फ फाइलिंग के हिसाब से है। रेमेडी तो वो सर उसके जुरिस्डिक्शन में जो भी उसको सर जो उसके डिस्क्रिप्शन में है वो कितनी भी दे सकता है सर। मतलब आपका कहने का ये है कि अगर 1 लाख रुपए का जुरिस्डिक्शन है आपको, तो आप 5 लाख रुपए का मुकदमा भी तय कर सकते हैं। जी सर। गलत। सॉरी। अगर आपका जुरिस्डिक्शन, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन आपकी लिमिट से एक्सीड कर रहा है, जी ऐसी सर। दशा में आप प्लेंट को फॉर वापस करेंगे फॉर प्रॉपर प्रेजेंटेशन टू द कॉम्पिटेंट कोर्ट। जी सर। You cannot dismiss the suit, you cannot reject the plaint, and जी you सर। have to return the plaint for जी सर। proper presentation to the proper court। और जब प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए आप रिटर्न करेंगे तो वो प्लेंटिफ अपना मुकदमा आपके यहाँ से हटा करके सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ ले जाए। जी सर। ओके। जी सर। थैंक यू सर। हाँ हाँ, अनूप जी। थैंक यू सर। तो तन्मय जोशी जी, जी सर। आपसे ये मेरा सवाल है कि राजस्थान के बारे में तो आप आई होप बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि वहाँ की सारी कलाएं संस्कृति के बारे में, जैसा कि आपके टोन से भी लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ऐसा फील आ रहा है मुझे। तो मुझे बस इतना बता दीजिए कि कुछ लोक नृत्य कौन कौन से ऐसे फेमस हैं राजस्थान में? जी सर। हम्म, सर सबसे पहले घूमर फेमस है राजस्थान में। घूमर, यस। जी सर। सर उसके बाद सर भरतपुर अंचल का एक सर भव्य सर जो
सर एक लोक डांस है, वो भी ये सर बहुत फेमस है, जिसमें सर बैलेंसिंग टेक्निक्स का ये सर दार्शनिक प्रदर्शन किया जाता है। सर उसके पश्चात सर गैर नृत्य जो मेवाड़ अंचल में सर होली के समय जो खेला जाता है, वो सर बहुत ही फेमस है। सर ये 3 सर डांस के बारे में अभी सर एक बहुत इम्पोर्टेंट आप भूल रहे हैं, जो काफी फेमस है, मतलब घूमर के साथ 13 ताली, सर यस सर, है ना, मे सर, बी yes, sir. कठपुतली डांस 13 ताली, काफी इसमें बैलेंस की जरूरत होती है, जो कि बहुत फेमस है। चलिए, चरकुला डांस, यस, जी सर, कच्ची गोरी भी एक उसमें से आता है, तेजा जी का भी डांस आता है। चलिए, बहुत बढ़िया, जी। कोई नहीं, आपने जो भी एफर्ट किया। जी एक मेरा ये सवाल है आपसे तन्मय जी, कि स्किन टू स्किन केस पॉक्सो एक्ट Yes, में sir. है, किस सेक्शन से ये रिलेटेड है? जी सर, सर ये सेक्शन 11 सर सेक्सुअल जो हरासमेंट के जो केसेस हैं सर, ये उससे रिलेटेड है। आर यू इसमें श्योर? सर एक यू कैन टेक योर सारे टाइम। सर, यस सर, सर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सर उससे रिलेटेड सर ये शायद, आई होप सेक्शन 7 इज द करेक्ट आंसर, आप देखिएगा। यस सर, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस आपने वर्ड बहुत बार सुना है, कहां पर डिफाइंड sir. किया गया है, किस एक्ट में और किस सेक्शन में? यस सर, सर सेक्शन 2 सबसेक्शन F of the Indian Contract Act defines the concept of reciprocal promises. सेक्शन 2, सबसेक्शन F, वेरी गुड। और कोई रिलेवेंट प्रोविजंस बता सकते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 2F से? yes sir. Sir, section 51 is there, section 52 is there, section 53, 54, and sir, section In between 55. 51 to 58, right? Yes, sir. Very good, very good. Yes. Over to you, Ashutosh sir. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू सर। सो तन्मय, आपने बताया योर फेवरेट सब्जेक्ट इज सीपीसी। जी तो सर, सीपीसी में हम एक प्रोविजन देखते हैं अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स का। जी सर, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स अगर रिजेक्ट कर दी जाए एप्लीकेशन, तो जी इसका सर। अपील लाई करता है। इसमें अपील होगा या रिवीजन होगा? सर इसमें अपील हो सकता है सर, इसके लिए प्रोविजन है सर अपील के लिए। कौन सा प्रोविजन है? सर प्रोविजन सर एग्जैक्टली सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। ये अपीलेबल ऑर्डर है? जी सर, ठीक है। सीपीसी के अलावा और कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं आपको? सर लगभग सर सारे में मेरी सर मैंने सर तैयारी की थी सर मेंस के हिसाब से, पर थोड़ा सर सीपीसी और शायद सर एसआरए लिमिटेशन सर ये अच्छा, सारे ठीक है। सर। कॉन्स्टिट्यूशन में पूछा जा सकता है आपसे सवाल? जी सर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। जी सर, तो अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 32, आपको क्या लगता है विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट्स? सर आई पर्सनली ये सर थिंक इज दैट आर्टिकल 14 and sir article 21 and also sir article is a 21A is also the most important, is also the most important fundamental right. मेरा सवाल ये है कि अगर हम कोई आर्टिकल आपको निकालना हो, अगर निकाल दें फ्रॉम द चैप्टर 3, सॉरी पार्ट 3, जिसके अंदर से कि फंडामेंटल राइट का एक आर्टिकल निकालने के बाद जो फंडामेंटल राइट का होल कॉन्सेप्ट है वो ही स्कैटर्ड हो जाएगा, वो बिखर जाएगा, और उस आर्टिकल की वजह से हम फिर किसी भी प्रोविजन के अगेंस्ट वायलेशन में हम डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो कौन सा आर्टिकल? सर आर्टिकल 13 जो सर है ये फंडामेंटल राइट्स में, अगर सर जो उसका जेनेसिस है फंडामेंटल राइट्स की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का, तो अगर सर वही निकाल दिया जाएगा तो सर फिर कोई फंक्टस ऑफिशियल सर उसका वो हो जाएगा। ठीक है। हम जब आर्टिकल 13 में लॉ की डेफिनेशन देखते हैं तो इसमें कस्टम से रिलेटेड, कस्टम एंड यूसेजेस से रिलेटेड जो लॉ है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? जी सर,
सर कस्टम्स एंड यूसेजेस इसमें इंक्लूडेड है। इसकी जो डेफिनेशन है सर, जो लॉ की ये आर्टिकल 13 में, और ये सर जो एग्जैक्ट जो केस है सर, मैं अभी ये रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। नहीं, कस्टम एंड यूसेजेस थोड़ा इलस्ट्रेशन देंगे, एक आध एग्जांपल देंगे इसके बारे में? जी सर, जैसे कि सर बहुत सारे सर जो कस्टम होते हैं, जैसे कि ये अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो विवाह के समय सर बहुत सारे सर ऐसे कस्टम्स फॉलो किए जाते हैं। जैसे कि राजस्थान की अगर बात की जाए तो सर एक छेड़ा प्रथा होती है। वहाँ पे सर ये सर पति और पत्नी के बीच में छेड़ा बांधा जाता है। ये सर नाता, ये सर प्रूफ, ये सब प्रथा भी। किसी कस्टम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं हम? जी सर, थोड़ा सर इस बारे में थोड़ा आइडिया है सर मुझे नहीं। ओके, ठीक है। हम जब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, अगेन बहुत ही प्रैक्टिकली अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स के एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो रिट्स बहुत ही इसमें काम आते हैं। जी सर। तो कौन सी रिट है जो सबसे पहले इतिहास में अगर बात करें तो इस्तेमाल की गई थी? सर हेबियस कॉर्पस की रिट शायद सबसे पहले इतिहास में इस्तेमाल की गई थी। कहाँ पे? सर ये थोड़ा सा ठीक है। जे एक्ट में हम सेक्शन 22 का असेसमेंट पढ़ते हैं, ये असेसमेंट पे थोड़ा लाइट डालेंगे? सर सेक्शन 22 ये कहता है कि सर जो प्रिवेंटिव एक्शन हैं सीआरपीसी में दिए गए हैं चैप्टर 8 में, वो सर एक जुवेनाइल है सर, उसके अगेंस्ट नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि सर वो बहुत ही अपने आप में सर एक हार्श ट्रीटमेंट हो जाएगा जुवेनाइल के अगेंस्ट। तो सर थोड़ा वो सर इलीगलिटी की तरफ सर वो इंक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, ओके। ओवर टू यू देवाशीष सर। मोस्टली क्वेश्चंस तो आपसे पूछ लिए हैं तन्मय जी। सारी चीजों पे बात हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप देखिए आप बता पाए तो। बीएनएसएस जो नया लॉ है उसमें 3 आपके हिसाब से जो सबसे बेहतरीन या सबसे जरूरी चेंजेस, 3 कोई भी चेंजेस आप मुझे बता सकते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में फ्रॉम सीआरपीसी। ओनली क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। जी सर। सर एक तो सर 0 एफआईआर का जो सर इंक्लूजन किया गया है सर, उसी सेक्शन जो सेक्शन 173 है बीएनएसएस का, तो उसके अंदर सर जो सर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ऑफ एफआईआर को भी सर इंक्लूड किया गया है। तो सर वो आजकल समय की मांग भी है सर, हमने कोविड के ये सर पश्चात देखा है। और एक सर जो डेफिनेशन है इसकी, क्या सर एक डेफिनेशन जो है सर, जो सर चाइल्ड की डेफिनेशन जो इंक्लूड की गई है सर, वो एक थोड़ा ठीक है, थैंक यू सर, बढ़ता एक कदम है सर। Tanmay, your knowledge is very excellent. Thank you sir. You are to the point. Thank you sir. You refer correct provisions of law. Thank you sir. And your way of answer is very much confident as well as correct. Thank you sir. So I hope that this time you will be selected finally. Thank you sir. I wish so. Thank you sir. I do not find any कोई कमी आप में दिखाई दी नहीं, और इसी कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तन्मय, जनरली मैं थोड़ा सा क्रिटिकल रहता हूँ, काफी सारी चीजें नोट डाउन करता हूँ। मैंने देखा, नोटिस किया आपको 2-3 चीजें छोटी बहुत बारीक सी चीजें हैं। वो ये है कि एक आपका जो पोस्चर है प्रॉपर है, आप ब्लेजर पहनेंगे प्रॉपर और बेहतर दिखेंगे। हेयर डू जो है आपका, और जो आपका मुस्टैश और पूरा बियर्ड वाला पोर्शन है, जितना हो सके ये क्लीन रखिएगा। अभी शायद थोड़ा आप दूर बैठे हैं तो हम लोग क्लियर कट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। जी सर, थोड़ी सर विजन की थोड़ी सर कमी होगी। कोई बात नहीं, वो चीज आप बस एक बार अपना जो ओवरऑल फेस है वो एकदम क्लीन रखिएगा, वो एक अच्छी चीज रहेगी आपके लिए। जी सर। दूसरा, आपका गुड पार्ट इज कि आपको राजस्थान की जीके पे भी कमांड है, मतलब
आपका राजस्थान का जीके इज गुड. मे बी इट इज योर ओन राजस्थान कॉलिंग यू कि भाई यहाँ वहां मत भागो, राजस्थान में ही जज बनो. बहुत अच्छी बात है ये. मैं एक चीज बस नोटिस कर रहा था कि आप थोड़ा मुस्कुराते कम हैं जवाब देते वक्त. थोड़ा सा आप बोर्ड को लेके भी कंफर्टेबल हो सकते हैं. जी सर. जैसे मित्तल सर भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, बाकी जो मेंबर्स हैं वो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो आप हल्का लाइट, हल्का फुल्का एक स्माइल दे सकते हैं. वो आपका जो अदरवाइज इंटेंस भी अगर पूरा चल रहा होगा इंटरव्यू, तो उसमें एक वो पॉजिटिविटी डाल देगा. जी सर. मुझे बहुत अच्छी चीज लगी आपके बारे में कि जिन क्वेश्चंस में थोड़ा भी 19-20 होने की चांस थी, आप उसमें बहुत हम्बली, बहुत पोलाइटली आंसर दे रहे हैं. आपको मना भी करना है तो आप बहुत पोलाइटली कर रहे हैं, हम्बली कर रहे हैं. जस्ट कीप इट अप. इसको कीप इट अप करके चलिएगा. यू विल डेफिनेटली बी क्रैकिंग. मेंस एग्जामिनेशन कैसा गया था आपका? सर मेरा अच्छा हुआ था सर. अच्छा गया था. और आपका डेट ऑफ इंटरव्यू कब है? सर मेरा 26 है, लास्ट डे है. चलिए बहुत अच्छा है. मतलब आप लग रहा है कि जो इंटरव्यूज का पूरा प्रक्रिया है उसको बहुत अच्छे से एंड होने वाला है वो, क्योंकि लास्ट डे आपका इंटरव्यू है. सो ऑल द वेरी बेस्ट. गुड लक तन्मय. सर थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. थैंक यू मैं तन्मय. बस एक चीज और कहना चाहूंगा. सॉरी सर, आप आशुतोष सर आप बोलो. नहीं सर, आप कंटिन्यू करें. बस मैं ये कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंट रहो. यू नो द आंसर्स. वी हैव बीन हियरिंग ऑल वे अलोंग. कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. अगर थोड़ा फ्रेमिंग में प्रॉब्लम आता है या कुछ भी दिक्कत होती है, बोर्ड उस चीज को समझता है कि अगर आपको नॉलेज है, भले आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है या बहुत प्रिसाइज आंसर नहीं हो पा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है. थोड़ा सा टाइम लेके करो. थोड़े से ज्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हो. जैसे सर ने भी बताया, थोड़ा फेस पे एक्सप्रेशंस या तुम्हारी तरफ से मतलब इंगेजिंग कम है थोड़ा सा. बहुत एक्स्ट्रा इंगेजिंग भी नहीं करना है, बट ये थोड़ा सा मतलब ऐसा रहना चाहिए कि अगर शुरुआत में मानिए चीजें हमारे हिसाब से नहीं जा रही हैं, तो अगर हम थोड़े से एंगेजिंग होते हैं तो बोर्ड का भी मन होता है कि चलो और सवाल पूछते हैं, तो वो हमारे उस पर जाता है. थोड़ा सा स्माइल रहता है, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट लगते हो ना, तो वो कॉन्वर्सेशन को बढ़ाता है एंड यू गेट मोर चांस टू क्लियर द इंटरव्यू. बाकी बढ़िया यार, ऑल द वेरी बेस्ट. कॉन्फिडेंट रहो और बिल्कुल बढ़िया से होगा, है ना. थैंक यू सर. मुस्कुराते रहिए, आपकी चांसेस हैं आरजे सेलेक्ट होने की. ठीक है. ऑल द बेस्ट. गुड लक. थैंक यू. ऑल द बेस्ट तन्मय. यू मे नाउ लीव द मीटिंग. सर एक लास्ट नोट में बोलना चाहूंगा. जी सर. आशुतोष सर. जी सर. तन्मय के लिए बोलना चाहूंगा कि मैं कॉपी लेके बैठा था, बट मैं कुछ लिख नहीं पाया कि इसमें क्या लिखूं कि इनमें क्या कमियां हैं. एंड जब शुभम सर ने बताया थोड़ा बहुत, तो मुझे भी लगा कि इनमें कोई कमी है. तो अगर आपको आरजेएस में सेलेक्ट नहीं किया तो मैं ये कहूंगा कि हमारे लिए बहुत, राजस्थान के लिए लॉस होगा. तो बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक. मैं आपको एज अ जज ही देखना चाहूंगा. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. एक मेरा सर एक सवाल है सर, अगर मैं ये रख सकता हूं सर. जी सर ये सर जो सिर्फ सर एक ये सर इंग्लिश में सर बोलने की जो सर ये दिक्कत है सर, कहीं अगर मेरे सिलेक्शन नहीं आ सकती है तो थोड़ा उसके बारे में भी अगर नहीं, आप लैंग्वेज शिफ्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. कर देते हैं. आप जिसमें कन्वीनियंट है, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, आप देखिए. उनको तो बोर्ड को तो आपकी पर्सनालिटी देखनी है, लैंग्वेज पर कमांड नहीं देखना है. तो अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो आप स्विच ओवर कर जाइए, नो प्रॉब्लम. जी. बच्चा ये याद रखो, वो तुम्हें जज बनाना चाहते हैं, स्टेनोग्राफर का एग्जाम नहीं. ठीक है. अंग्रेजी जरूरी नहीं है, नॉलेज और पर्सनालिटी जरूरी है. ठीक है. और हिंदी भाषा में भी जितना भी आप कन्वे कर पा रहे हो अपने आप को, वो इम्पोर्टेंट है. नॉलेज इंपॉर्टेंट है, पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है. लैंग्वेज एक मीडियम है, उसको आप एक मीडियम की तरह ही मानिए, और वो कभी भी आपके सिलेक्शन को रोक नहीं सकता. इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए. जी सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इंटरव्यू. थैंक यू.